ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو خبر دیں شہر قائد میں ڈالا مافیا بے لگام ہو چکا ہے۔ ٹیپو سلطان روڈ پر اوباش افراد کی مسلح گارڈز کے ہمراہ بدمعاشی، 2 ڈاکوؤں پر سوار مسلح افراد کا سوار فیملی کو ٹکر مار کر بھاگ گئے۔ کار سوار نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو اسلحہ تان لیا۔ جدید ترین اسلحے میں شخص نے بہن بھائی کے اوپر ہتھیار تانے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شایان علی سے۔ شایان، اس واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر قائد میں جو ہے ڈالا مافیا جو ہے ایک بار پھر سے بے لگام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس سے قبل بھی اس طرح کے جو ہے وہ مختلف واقعات منظر عام پہ آئے ہیں اور جس سے جو ہے دیکھا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پیش آتے ہیں کہ جو کہ کراچی کے شہریوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراچی کا علاقہ ہے، ٹیپو سلطان روڈ پر جو ہے وہ اوباش افراد کی جو ہے قبائلی لباس میں مسلح گارڈ کے ہمراہ جو ہے بدمعاشی کی ویڈیو ہے واقعہ ہے، جو ہے 2 ڈالوں پر سوار افراد 4 سوار فیملی سے جو ٹکر مار کر بھاگے تھے، جبکہ 4 سواروں نے جو ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو اسلحے جو وہ تان لیا گیا، جبکہ جدید ترین اسلحے میں جو شخص نے بہن بھائی کے اوپر ہتھیار پوائنٹ کر دیا تھا، جبکہ مسلح افراد 2 کالے گاڑیوں پر سوار تھے اور ایک گاڑی پر جو 3 جبکہ دوسرے پر ایک مسلح شخص جو وہ موجود تھا۔ ملزمان کی جانب سے جو وہ علاقے میں شدید خوف و ہراساں پھیلایا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ کراچی میں ڈسپلے آف ویپن اور اس کے ساتھ جو ہے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ پر جو ہے پابندی عائد ہے اور باقاعدہ جی بالکل، سیکیورٹی گارڈز پہ پابندی عائد ہے۔ شایان علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شایان، آپ کا شکریہ۔ بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں آئندہ مالی سال کے بجٹ سے قبل تعلیمی شعبے کی نظریں حکومتی اعلانات پر مرکوز ہیں۔ اردو بازار کے تاجروں کو امید ہے کہ اسٹیشنری اور تعلیمی اشیاء پر ٹیکسوں میں کمی سے طلبہ، والدین اور کاروباری طبقے کو ریلیف ملے گا۔ رابعہ صدید کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی بجٹ سے قبل عوام کی امیدیں، تعلیمی شعبے کی توقعات بڑھ گئیں۔ اسٹیشنری کے تاجر ریلیف کے منتظر۔ 5 جون کو وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ مختلف شعبوں میں توقعات اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسٹیشنری اور تعلیمی اشیاء کی قیمتوں پر بجٹ کے ممکنہ اثرات زیر بحث ہیں۔ اردو بازار سے وابستہ تاجر کا ٹیکس میں کمی کا مطالبہ۔ چیئرمین ٹریڈر ایسوسی ایشن اردو بازار ساجد یوسف کا کہنا ہے کہ ٹیکس کم یا ختم کر دیا جائے تاکہ تعلیمی اخراجات میں کمی آئے اور عوام کو ریلیف مل سکے۔ اگر گورنمنٹ جو 5 جون کو بجٹ پیش کر رہی ہے اور اس پہ اگر ٹیکس لگاتی ہے تو یہ ہمارے بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے تو دشمن کے بچے کو پڑھانا ہے اور اگر ہم تعلیم عام کریں گے تو ظاہری بات ہے ہمارا ملک ترقی کرے گا اور تعلیم سے ہی شعور آتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ بازار میں مسلسل بڑھتی قیمتوں نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت بجٹ میں ایسے اقدامات کرے جس سے تعلیمی اخراجات کم اور عوام کو حقیقی ریلیف مل سکے۔ اب جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بجٹ دراصل ایسا ہونا چاہیے کہ عوام کے حق میں ہو جائے، عوام کی فیور میں ہو جائے، کیونکہ آلریڈی عوام بہت پریشان ہے، معاشی حالات ہمارے بڑے خراب جا رہے ہیں، تاکہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آ جائے کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکے، معاملات بھی اپنے چلا سکے۔ سورس آف انکم لوگوں کے پاس کم ہے، وسائل کم ہے، مسائل بہت زیادہ ہے۔ تو میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ اس چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو بھی معاملات ہیں وہ اس کو پیش کیا جائے۔ اردو بازار کے تاجروں کا کہنا ہے کہ اب نظریں بجٹ اعلانات پر ہیں، کیونکہ یہی فیصلے طے کریں گے کہ تعلیم سے وابستہ شعبے اور عام شہریوں کو کتنا ریلیف ملتا ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ رابعہ صدید، سٹی 21۔ بجٹ کے حوالے سے ہی بات کریں، نئے بجٹ سے قبل زرعی شعبے کی تشویش بڑھ گئی ہے۔ غذائی اجناس کے تاجروں نے حکومت سے مزید ٹیکس نہ لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے کسان اور عوام دونوں کو مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ زراعت پر مزید ٹیکس نہ لگایا جائے، نئے بجٹ سے قبل تاجروں نے ریلیف مانگ لیا۔ نئے مالی سال کے بجٹ سے قبل غذائی اجناس کے تاجروں نے زرعی شعبے کے لیے ریلیف کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شہاب الدین مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر محمد اسلم کا کہنا تھا کہ زراعت پر مزید ٹیکس عائد نہ کیے جائیں، جبکہ موجودہ ٹیکسوں میں بھی کمی کی جائے۔ میں تو یہ رائے دوں گا، تجویز دوں گا جو ہمارے بجٹ بنانے والے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا ٹیکس نہ ڈالیں زراعت پہ، نہ ڈالیں معیشت پہ، نہ ڈالیں ملازمین پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کاروباری حالت بہت خراب ہے اور جو لوگوں کی مالی حالت ہے وہ زیادہ خراب ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ فصل کی پیداوار سامنے آنے کے بعد ہی ٹیکس کا تعین کیا جانا چاہیے۔ مسلسل بڑھتی مہنگائی نے
कारोबार और आवाम दोनों को मुतासिर किया है। बजट में आप ज़राअत पे टैक्स लगाएंगे, मगर मेरा कहने का ये मकसद है जितनी ज़राअत पैदा होगी उस पे लगाओगे ना। जब ज़राअत में खराबी हो जाएगी, आप पहले से टैक्स लगा के बैठ जाओगे तो फायदा क्या? वो जो वक्त पे पैदा हो उस पे टैक्स लगाया जाए। ताजरों के मुताबिक ज़रूरी शुबा मुल्क की मईशत की बुनियाद है। किसानों को सहूलतें दी जाएं ताकि पैदावार बढ़े और आवाम को सस्ती अशिया खुदनोश मैसर आ सकें। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कराची के ज़िला कोरंगी का कदीमी इलाका लासीपाड़ा आज भी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। मकीनों का कहना है कि 50 साल गुजरने के बावजूद इलाके में पानी की बाकायदा फराहमी का निज़ाम कायम नहीं हो सका, जिसके बायस हज़ारों शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। बनीर का कदीमी इलाका लासीपाड़ा पानी के शदीद बहरान का शिकार है। इलाका मकीनों के मुताबिक 50 साल पुरानी आबादी में आज तक पानी की बाकायदा फराहमी का निज़ाम कायम नहीं किया जा सका। 70,000 से ज्यादा आबादी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बोरिंग के पानी पर इन्हिसार करने पर मजबूर है। मकीन बोले, हमारे इलाके में कभी पानी की लाइन नहीं डाली गई, हम बरसों से बोरिंग के पानी पर गुजारा कर रहे हैं, अब पानी भी कम होता जा रहा है। ये हमारा लासीपाड़ा जो है ये 50 साल पुरानी आबादी है और यहाँ पे जो है पानी की अभी तक लाइनें भी नहीं बिछी। यहाँ पे पहले तो लोग जो है वो बोरिंग पे गुजारा कर रहे थे, जो 200 फीट पे पानी आता था। अब तो बोरिंग इतनी नीचे चली गई है पानी ना होने की वजह से कि 350-400 फीट पे भी पानी बहुत मुश्किल से आ रहा है। बोरिंग जो सी है यहाँ करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल, अब तो ज़्यादा बोरिंग शुरू हो गई है। पहले इतनी दिखने में कम आती थी, अभी ज़्यादा बोरिंग हो रही है लेकिन पानी नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मुसलसल नीचे जा रही है, जिसके बाद मुतादिद बोरिंग्स नाकारा हो चुकी हैं, जबकि बाकी भी खुश्क होने के करीब हैं। सख्त गर्मी में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। रिहायशियों के मुताबिक पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, मजबूरन महंगे दामों पानी खरीदना पड़ता है। हुक्काम कई बार वादे कर चुके हैं लेकिन मसला आज भी बरकरार है। तकरीबन यहाँ पे पानी हर रोज़ ख़रीदना पड़ता है, उसके अलावा प्लांट वगैरह का पानी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। हमारी पैदाइश से पहले का यहाँ पे कोई पानी वगैरह नहीं है, किसी किस्म का कोई भी पानी का इंतज़ाम नहीं है। इलाका वकील मुतालबा कर रहे हैं कि लासीपाड़े में फौरी तौर पर पानी की फराहमी के लिए लाइनें बिछाई जाएं और मुस्तकिल बुनियादों पर पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी दहाइयों पर मुहीत मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मॉडल कॉलोनी के यूनियन कमेटी नंबर 1 शीट 19 में गुज़िश्ता 10 माह से सीवरेज का मसला हल न हो सका। निकासी आब का निज़ाम दरहम भरम होने के बायस मुतअद्दिद गलियाँ और लिंक रोड्स गंदे पानी से भर चुकी हैं। मसाजिद, बाजार और रिहायशी इलाके शदीद मुतासिर हैं, जबकि मच्छरों और ताफुन के बायस बीमारियों के खदशात भी बढ़ गए हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद ने सूरत हाल का जायजा लिया है, देखते हैं ये रिपोर्ट। मॉडल कॉलोनी की शीट 19 में सेवरेज का बहरान शहरियों के लिए अजाब बन गया। 10 माह से जारी इस मसले के बायस गलियां और सड़कें गंदे पानी में डूबी हुई हैं। आमदोरफ्त के साथ कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। रिहायशी बोले, हम कई माह से इस मसले का सामना कर रहे हैं। गंदा पानी घरों के सामने जमा रहता है, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तो प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल चलता फिरता रोड, बिल्कुल रेडी रोड था। अच्छा, इसको क्या प्रॉब्लम बना, क्यों उखेड़ दिया? अच्छा, उखेड़ा भी तो कम से कम इसको कंप्लीट तो करें। अच्छा, हम दुकानदार तो ज़ीरो पे आ गए। अगर हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो सारे कपड़े कीचड़ में भर के आते हैं, प्लस हमारा बिल्कुल 0% कारोबार पे आ गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार मुताल्लिका इदारों को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं किया जा सका। गंदगी और ताफुन के बायस मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। मसाजिद, बाजार और रिहायशी इलाके सब मुतासिर हैं। इंतजामिया फौरी इकदाम करे ताकि हमें इस अजियत से निजात मिल सके। ये पानी की वजह से गंदगी हो रही है, घरों में पानी जा रहा है, रास्ता भी नहीं है, बिल्कुल आने जाने का भी नहीं है रास्ता, और उसकी वजह से जो है ना ये 3-4 महीने से ये हालत हुआ पड़ी है। इलाका मकीन इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और मुस्तकिल बुनियादों पर सेवरेज निज़ाम की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नाज़रीन, शहर कायद में खेलों का फुकदान। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट मॉडल कॉलोनी फरियाल क्रिकेट ग्राउंड ज़बूहाली का शिकार हो गया है, जहां बुनियादी सहूलियात के फुकदान ने मुकामी खिलाड़ियों को मुश्किलात से दोचार कर रखा है। देखिए मोहम्मद हमाद की ये रिपोर्ट। रोशनियों का शहर कहलाने वाला कराची आज भी बुनियादी मसाइल से दोचार। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की मॉडल कॉलोनी का फरियाल क्रिकेट ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार। इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जोही के बायस खेल के मैदान तबाह होने लगे। ग्राउंड की पिच
टूट फूट का शिकार है, मैदान गैर हमवार हो चुका है, जबकि सफाई और देखभाल का निजाम तकरीबन ना होने के बराबर दिखाई देता है। ऐसे हालात में नौजवान खिलाड़ी न सिर्फ बेहतर खेल पेश करने से महरूम हैं, बल्कि उन्हें दौरान खेल जख्मी होने का खतरा भी लाहक रहता है। इलाका मकीनों का कहना है कि खेलों के फरोग के दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर जमीनी हकाइक इसके बरक्स नजर आते हैं। मॉडल कॉलोनी के इस अहम क्रिकेट ग्राउंड की हालत रोज बरोज खराब होती जा रही है, जबकि मुताल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मॉडल कॉलोनी में अब ये गिनती के 1-2 ग्राउंड रह गए और ये यहाँ के प्लेयर्स के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि ये ग्राउंड बचे हुए हैं। तो मेरी मुताल्लिका जो ये कमेटी है या सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस ग्राउंड को प्रॉपर किया जाए और इसकी पिच बनाई जाए। ये तो एक जमात ने जो है हमारी पिच 2005 में बना के दी थी और 21 साल पहले की बात है ये। उसके बाद फिर किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ग्राउंड में खेलने वाले इलाका मकीन कहते हैं, अगर फरियाल क्रिकेट ग्राउंड की बहाली पर फौरी तवज्जो ना दी गई तो मकामी सतह पर मौजूद क्रिकेट टैलेंट शदीद मुतासिर होगा और नौजवानों के लिए खेल के मौके मजीद महदूद हो जाएंगे। हम जो है यहाँ पर तकरीबन जो है ना ये हमारा होम ग्राउंड है, हम बचपन से यहाँ खेलते हुए आ रहे हैं और हमने देखा है कि कराची में बहुत से ग्राउंड जो है ना जो बन गए, ग्रीनरी हो गई है, वहाँ पर घास लग गया है, टर्फ बन गई, लेकिन इस ग्राउंड की तरफ किसी की नज़र नहीं है। 20 साल पहले एक विकेट बनी थी और उसका टूट फूट का शिकार है। आए दिन जो है ना हमें यहाँ पर बॉल लगती रहती है, कभी जिस्म पर लगती है, कभी मुँह पर लगती है, लेकिन अगर सेफ्टी गार्ड्स वगैरह ना पहने हो तो हमारे को वो जो है नुकसान पहुँचाती है। खेल सेहतमंद माशरे की बुनियाद समझे जाते हैं, मगर मॉडल कॉलोनी का फरियाल क्रिकेट ग्राउंड बद इंतजामी और अदम तवज्जोही की अलामत बन चुका है। अब देखना यह है कि मुताल्लिका इदारे नौजवानों के इस मुतालबे पर कब हरकत में आते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ धकड़ तेज कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। तफसीलात मिराज अख्तर की रिपोर्ट में देखिए। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। बगैर नंबर प्लेट या फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला जारी है। नाकों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिले पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। नाके कोरंगी रोड, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद और दीगर मुकामात पर लगाए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है और मौके पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। अफसरान बाला का अहकाम है कि जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट छोटे हैं, जो वाज़ेह तौर नज़र नहीं आ रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तकरीबन ई चालान में जिसका नहीं है तो उसको ई चालान जारी कर रहे हैं और कुछ गाड़ियों के नंबर प्लेट जो नहीं है लगे हुए तो उनको हम भेज रहे हैं कि आप नंबर प्लेट बनवा के ले आएँ। वो बनवा के आते हैं तो हम जैसे वो नंबर प्लेट बनवा के आया तो इस गाड़ी को हम रिलीज़ कर देंगे। जो नंबर प्लेट बनवा के नहीं आएगा तो हम उसको थाने में भेज देंगे, थाने के अंडर कर देंगे, वो 550 की कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। पुलिस हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नंबर प्लेट आवीज़ा करें और कागजात साथ रखें ताकि चालान और जुर्मानों से महफूज रह सकें। कैमरामैन शाहजेब के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। नाज़रीन, वसल आर्ट गैलरी में बेगीनामा से मुगलिया दौर के फ़न की अक्कासी करती नुमाइश सज गई। बहराम फारूकी ने मुगलिया दौर में जारी किए जाने वाले फरमान को जदीद दौर में ढाल बनाकर नुमाइश में पेश किया है। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। राहिल, बताइएगा। जिस वक्त तुम मौजूद है वसल आर्ट गैलरी में, जहाँ पर खूबसूरत नुमाइश का इनेकाद किया गया है और नौजवान उभरते हुए मुसव्विर हैं बहराम फारूकी, जिन्होंने बेगीनामा के नाम से इस आर्ट को आज नुमाइश के लिए शोकेस किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहराम, क्या कहेंगे आज का जो आपका काम है, क्या थीम है, इस बेगीनामा का क्या मकसद है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? बेगीनामा बेसिकली म्यूज़ियम ऑफ अनसीन के रिलेटेड एक आर्ट वर्क मैंने सीरीज़ क्रिएट की है। एंड मैंने ये बेगीनामा का वर्ड जैसे अकबर नामा, बाबर नामा होते थे मुग़ल हिस्ट्री के, मैंने उससे ड्राइव किया है। एंड आई वाज वर्किंग ऑन एंड रिसर्चिंग ऑन उर्दू बेगी, जो कि फ़ीमेल वॉरियर गार्ड्स थे मुग़ल हरम के एंड मुग़ल ज़नाना एंड एम्पायर को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन इनके बारे में हिस्ट्री के अंदर सिवाय कुछ पैराग्राफ, कुछ लाइनों के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन या पिक्चर नहीं मिलती इनके। तो इट जस्ट इंट्रिग में अलॉट कि मैंने इसके रिगार्डिंग फिर मैं स्टार्टेड इमेजिनिंग माई ओन वर्क के हाउ दे वुड हैव लुक लाइक एंड
किस तरह से इनको और रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आई ट्राइड क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव आर्काइव। बिल्कुल, जिस तरह से एक शाही फरमान हुआ करते थे, जिस तरह से बादशाह मुगलिया दौर में एक दूसरे को अपना फरमान या कोई पैगाम जारी करते थे, ये उसी की झलक है। जिस तरह से लफ्ज़ों को आप बुन रहे हैं बुनत के साथ, क्योंकि उस वक्त तो सोने के हरूफ से बुना जाता था। तो आप क्या समझते हैं, जो एक मुग़ल एरा है उसका आर्ट में एक बड़ा मकाम है, चाहे उनके मिनिएचर की बात करें या ख़ताती की बात करें, तो आप क्या समझते हैं जो यंग आर्टिस्ट है वो कितना इन्वॉल्व है और इसका पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस आर्ट का? मुग़ल मिनिएचर्स का आई थिंक एज एन पाकिस्तानी आर्टिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का हिस्ट्री के अंदर भी, बिकॉज हम लोग एज अ फाइन आर्टिस्ट जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम लोग मिनिएचर्स बाकायदा सीखते हैं। एंड आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है हम लोग की जर्नी का एज एन आर्टिस्ट टू डेवलप दिस प्रैक्टिस, एंड स्टिल इट्स क्वाइट अ सर्वाइविंग आर्ट आई वुड से। एंड अब थोड़ा सा मॉडर्नाइज भी हो गया है, जैसे न्यू मिनिएचर के अंदर भी काफ़ी अब हमारे काफ़ी नामवर पाकिस्तानी आर्टिस्ट अब जो है काम भी कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल जी। बहराम फारूकी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बेगी नामा के नाम से ये खूबसूरत शाहकार फनपारे बनाए हैं, जिनमें बादशाही दौर जो एक खूबसूरत दौर गुजरा है मुगलिया सल्तनत का, उनके जो फरमान नामे होते थे उनको आज के इस जदीद दौर में ढालने की कोशिश की है और नौजवान नस्ल को अपनी इस रिवायत और तारीख से भी रोशनास करवाने की कोशिश की गई है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और केमारी के आवाम का पानी बहाल हो गया है कि इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट से हब पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल हो गई थी, जिसकी मुरम्मत कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी की आवाम के लिए खुशी की खबर बिलाखिर आ गई। हब पंपिंग स्टेशन से पानी की जो सप्लाई है वो बहाल हो गई है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से फॉल्ट दूर कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ अचानक हब पंपिंग स्टेशन के केबल फॉल्ट के बाइस बिजली मुअत्तल हुई, जिसके बाद जो सप्लाई है हब पंपिंग स्टेशन से वो आवाम की मुअत्तल हो गई थी, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी की आवाम को बिलखुसूस जो है वो सफ़र करना पड़ा। हंगामी बुनियादों पर वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम की साथ जो है वो मिलकर जो के इलेक्ट्रिक हुकाम है मुतालिका उनकी जानिब से जो है ये मुरम्मती काम मुकम्मल किया गया और इस मुरम्मती काम के मुकम्मल होने के बाद हब पंपिंग स्टेशन की बिजली जो है वो बहाल की गई। बहाल होते ही फौरी तौर पे तमाम पंप्स जो हैं वो हब पंपिंग स्टेशन से वो चला दिए गए और जो सप्लाई है तकरीबन 85 MGD पानी जो फराम किया जाता है पंपिंग स्टेशन से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी की आवाम को, वो तमाम पानी जो है वो बहाल कर दिया गया। सप्लाई मामूल के मुताबिक है। HTM और दीगर लाइनों को चार्ज कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला तमाम इलाकों में जारी है। मरहलावार उन तमाम इलाकों में जो पानी की रोज़ होता है, जिस दिन जिस इलाके को पानी फराम किया जाता है, मामूल के मुताबिक पानी है, उनको आवाम को जो है वो पानी मिलना शुरू हो जाएगा। वो जो पानी 85 MGD मुअत्तल था बिजली के फॉल्ट के बाइस हब पंपिंग स्टेशन से वो फॉल्ट दूर कर दिया गया है। जी।